मैं ग्रुप्स ऑफ 3 यू हैव टू एस्टिमेट यूरिक एसिड आल्सो. जल्दी जल्दी काम हो जाएगा. पहले एल्ब्यूमिन. Once you have done estimated albumin, please come for uric acid. जब estimate हो जाए पूरा. तुम क्यों कर रहे हो? तुम किसके साथ हो? बेटा मैंने कहा था 3 लोगों का ग्रुप में बने होगा. आपके हाथ में 2 क्यूवेट्स कैसे? अरे वो बाद में होगा. जल्दी करो. ठीक है. 66, 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. बेटा 3-3 का ग्रुप बनाओ. इसके बाद यूरिक एसिड भी एस्टिमेट होगा. ठीक है. तो टाइम नहीं है हमारे पास. दिस इज द रिएजेंट, दिस इज द सैंपल. डू इट क्विकली. करो. स्टार्ट करो. इन ग्रुप्स ऑफ 3. ठीक है. सेम ग्रुप विल कम फॉर यूरिक एसिड. না পড়ে আর কিন্তু নেই. নেই সে প্রচুর আছে. তোমাদের সবাই কি আর আরো একটু তলে ভিডিও দেবো. কই দাও একটু শেষ করে দিলাম. তুমি পুরো তো আগে স্টার্ট ঠিক আছে. এটা কি ফার্স্ট ইনস্টল করেছিলাম না কি করছো কোথায় দিলাম যে এতটা হয় 10 মার্কেটে. এই যে ঠিক আছে. টাচ করি বলি টাচ করাবে না, সে টাচ করে দিল. ঠিক আছে. মিস করো. ठीक है. बेटा क्या नाम है तुम्हारा? नेक्स्ट नाम. क्या नाम है तुम्हारा? बहुत स्मूथ पिपेट किया बेटा. বেশি হয়ে গেছে. ফার্স্ট ইনস্টল করেছিলাম না এখানে. ব্যাস ছাড়ো. बेटा 3-3 का ग्रुप बनाओ और ये एल्ब्यूमिन का रिएजेंट है, ये सैंपल है. पिपेट करो स्ट्रिक्टली इन ग्रुप्स ऑफ 3. ओके. व्हाई? बिकॉज यू हैव टू डू यूरिक एसिड आल्सो आफ्टर दिस. ओके. स्टार्ट. बेटा इधर आ जाओ. ध्यान में. इधर आ जाओ. इधर आ जाओ.
सिमिलर ग्रुप विल पिपेट फॉर यूरिक एसिड आल्सो, ठीक है। जो ग्रुप बेटा यहाँ पे एल्ब्यूमिन पिपेट कर रहा है वही यूरिक एसिड भी पिपेट करना वैसे। ইনকিউবেট, ইনকিউবেট। 2.2 ঠিক আছে, দাও রাখো রাখো। हो गया? ঠিক गुड। আছে, নেক্সট। হ্যাঁ, এটা স্যাম্পল একটু কম তুলেছে, 10 মাইক্রোলিটারেরও কম তুলেছে, ওই জন্য এটা কম হচ্ছে। ঠিক আছে, এটা হাইপোঅ্যালবুমিনেমিয়া হচ্ছে, ঠিক আছে। ক্লিনিক্যালটা ভালো করে পড়বে। ঠিক আছে, 3.5 টু 5.5 গ্রাম পার ডিএল, ঠিক আছে নরমাল রেঞ্জ। তাহলে 2.9 ভ্যালু এসছে পেশেন্টের, তাহলে এটা কম আছে, নরমাল রেঞ্জ থেকে কম আছে, তাই তো? তাহলে তার জন্য কি কি ক্লিনিক্যাল হতে পারে সেটা কিন্তু তোমরা পড়বে এবং লিখবে খাতায়, ঠিক আছে? বলো। थोड़ा थोरोली मिक्स करना, ये एकदम से হ্যাঁ, ওটা বললাম। এই যে তোমাদেরকে স্যাম্পলটা দেওয়া হয়েছে, ওই স্যাম্পলের ভ্যালুটা বললাম। ওই রকম রেঞ্জে এলে ঠিকঠাক। এবার এটাও ঠিক আছে, যেহেতু 0.3 ডিফারেন্স, নো প্রবলেম, ওকে। তাই জন্য বাট তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে নরমাল রেঞ্জ থেকে বেশি আছে না কম আছে, আর তার জন্য কি কি ক্লিনিক্যাল হবে, এটা কিন্তু এক্সটার্নাল জিজ্ঞেস করবে, লিখতে হবে। যাও লেখো গা সবাইকে। 3.66 হ্যাঁ, তাহলে বলো কি আছে এটা। হাইপার হয়ে গেছে। হাইপার নয়, 3.5 থেকে 5.5 নরমাল রেঞ্জ, তাহলে 3.6 এসছে, তাহলে উইদিন নরমাল রেঞ্জ আছে। হ্যাঁ, এটা বললাম তো। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু বললাম না, এটা ভুল এসেছে। এটা ভুল এসছে, দেখো এ ভুল এসছে এই কারণে বলেছে, কারণ তোমাদেরকে যে স্যাম্পলটা প্রোভাইড করা হয়েছিল সেটাতে তোমার ভ্যালুটা আসা উচিত 2.2 টু 2.8 এরকম, ঠিক আছে? এই ভ্যালুতে আসা উচিত, যেহেতু তোমার 3 পয়েন্ট সামথিং এসে 6 এসছে, তাই জন্য বলেছে যে তোমার স্যাম্পলটা ভুল ছিল, মানে তোমার টেস্টটা ভুল হয়েছে, টেস্টের মেথডটা ভুল হয়েছে, কিন্তু তোমার যে রেজাল্ট এসছে সেই রেজাল্টের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু তুমি ক্লিনিক্যালটা লিখবে পরীক্ষায়, ঠিক ঠিক আছে। আছে? বুঝতে পেরেছো? वहां से आपने 6 एस्टिमेशन की अभी तक आपको नहीं पता चला, बिना आंसर रिपोर्ट करे आप नहीं जाते हैं कहाँ? बोलो प्रिंसिपल, बोलो बेटा एल्बम का। इधर आ जाओ, सामने सामने आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। आप बोलो बेटा एल्बुमिन का प्रिंसिपल। Binds with BCG and buffer solution to form green compound. नंबर भी ऐसे ही मिले। बोलो मिस्टर सरकार। Albumin has an isoelectric bond of 4.7. It acts Tell me the principle. monocyclic green, which is an anionic type, binds with albumin under acidic condition to give a green colored complex, which on colorimetric estimation gives the concentration of albumin in the sample. बस। And the intensity of the color is directly proportional to the concentration of the albumin in the sample. What is the normal range of albumin? So in males it is 3 to 7. कितना? एल्ब्यूमिन 2.5 mg per कितना बोला मैंने सुना नहीं। थोड़ा जोर से बोलो, मेरे कान बंद है आज स्वेलिंग की वजह से। अच्छा, डिड यू कैलकुलेटेड एस टू जी रेशियो बेटा? कितना है? तुम्हारा टोटल प्रोटीन कितना आ रहा था याद है?
जो तुमने एस्टिमेट किया था बेटा, देखो अच्छा, टेल मी द फंक्शंस ऑफ एल्ब्यूमिन. और बिलीरुबिन का एक स्पेसिफिक फ्रैक्शन होता है, कौन सा? हाँ. और थायराइड हार्मोन ट्रांसपोर्ट. बाय बाय. हाँ, ये ठीक है. और बोलो. प्रोटीन का वैल्यू क्या? हाँ, यूरिक एसिड नहीं किया. हंस रहा है अभी भी. जाओ, बैठ जाओ सीट पे बैठो, बाद में बात करेंगे. हाँ, किसी ने निकाला बेटा S/G रेशियो. निकालो. कॉपी कहाँ है? ठीक है बेटा, एल्ब्यूमिन के प्रैक्टिकल में सबको A/G रेशियो मेंशन करना है. ओके, A/G रेशियो हैज टू बी मेंशन्ड इन एल्ब्यूमिन. ओके, और टोटल प्रोटीन का रेफरेंस आप अपने पुराने वाले एक्सपेरिमेंट से ले लेना, जो भी आ रहा है, एवर यू आर. टेल मी द नॉर्मल रेंज फॉर यूरिक एसिड. Females it's 2 to 5 mg per dl. नो, नो. ग्राम पर डीएल. mg per dl. इट इज नॉट 2 to 5. फिर से पूछा. अबे क्यों कूदता है गड्ढे में? है आराम से, आराम से. ठीक है, नो वन विल स्पीक आउट ऑफ टर्न बेटा, नो वन विल स्पीक. बोलो मिस्टर सरकार, बोलो. कितना तूने 2 to 5 बोला? हाँ, फॉर मेल्स इट इज 3 to 7, फॉर फीमेल्स इट इज रफली 2.5 to 6 mg per day. इतना, ठीक है. 2.5 to 6, ठीक है, रफली इतना ही होता है mg per day. इतना ही होता है रफली. अच्छा, टेल मी व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूरिक एसिड एस्टिमेशन. बेटा जोर से बोल, मेरे कान बंद है आज स्वेलिंग की वजह से. हाँ हाँ, साथ में क्या देता है? एलेंटोइन.
एलेंटॉइन, हाँ बोलो, आगे बोलो, हाँ आगे बोलो. H2 react with 4 AFE and these CPS इन प्रेजेंस ऑफ, in presence CPS फुल फॉर्म क्या होता है? dichloro phenol Good. sulfonate गुड, वेरी गुड. डाइक्लोरोफिनॉल सल्फोनेट. गुड. to give हाँ बोलो. quinone imine which is red in color. हाँ, रेडिश टू पिंकिश कलर. आगे आगे बेटा आप कंप्लीट करो पीछे जहाँ से इन्होंने छोड़ा. हाँ यस बेटा, ये लाल पीला कलर बना के क्या मिलेगा? होली थोड़ी खेलनी. You have to measure what is the intensity of that colored complex, because intensity is directly proportional to amount of that analyte present in the sample. ठीक है? कुछ केसेस में उल्टा भी होता है, वो आगे दिखाएंगे आप. ठीक है? कुछ केसेस में क्या होता है बेटा, जितना कलर डिसअपियर होता है ना, उतना एनालाइट ज़्यादा होता है. एक दो ही होता है. कराएंगे वो. नाम क्या? बेटा तुझे आज पहली बार देख रहा हूँ. सॉरी, आता था क्लास में? पक्का? ठीक है, ठीक है, पहचाना नहीं होगा मैंने. ठीक है बेटा, whenever your practical is done, do not just run away, just come here and report your answers. ठीक है? That is why I was telling you. There is a specific reason for that. Whatever you have made, if you have made any mistake, that can be corrected here and यहीं पे. ठीक है? ओके? किसी का कोई क्वेरी बेटा? कोई डाउट? कोई डाउट? अच्छा, एल्ब्यूमिन कितना है बेटा बताओ? एल्ब्यूमिन कितना कितना है? चलो तुम लोग बोलो. तेरा टाइम आज वाकई में खराब चल रहा है. दोबारा बोल. कितना है एल्ब्यूमिन? हाँ, छठा एस्टिमेशन है मैम, यूनिट नहीं बोलता अभी तक. 3 ग्राम पर डीएल बेटा, ग्राम पर डीएल. ठीक है? अरे यूनिट बोल दे मेरे भाई, तू गलत ही बोल. इट्स अ डिफरेंट थिंग. बट एटलीस्ट रिपोर्ट योर आंसर विद अ यूनिट. मिस्टर सरकार, व्हाट इज हैपनिंग? फोकस, थोड़ा फोकस. ठीक है? ध्यान दो अच्छे से. आप लोग 2.65 एमजी में तो आदमी खत्म है बेटा. ग्राम पर डीएल. रिमेंबर ऑल द मेजर एनालाइट्स, glucose, creatinine, urea, these are measured in Ng per dl. Proteins are measured in gram per dl. जितना एंजाइमेटिक होता है बेटा, उनका होता है इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर. ठीक है? जब SGOT, SGPT एस्टिमेट करोगे, उनका यूनिट अलग चलता है. ओके? कितना आया? 1.86 ग्राम पर dl. आपके साथ आप दो. ठीक है. अच्छा एक सेकंड, यूरिक एसिड कितना है? 10.364 mg per day. गुड. दोनों बताओ बेटा. किसका? यूरिक एसिड. गुड. आप तीनों ना? ठीक. So albumin 2.258 gram per kg or uric acid 12.4. So albumin नहीं तू मत बोल बेटा. हाँ बेटा तुम बोलो. क्या? यूरिक एसिड. मैम इस ग्रुप का पिपेटिंग अच्छा है, स्टेबल पिपेट करता है सारा. मतलब आंसर भी सबका ऑलमोस्ट सेम ही रेंज में. ठीक है? टेल मी द यूजेस ऑफ एल्ब्यूमिन. व्हाट फंक्शंस डू एल्ब्यूमिन परफॉर्म? प्लाज्मा एम्बोलिक प्रेशर है वो मेजरली एल्ब्यूमिन करता है. हाँ इंक्यूबेट करो. एल्ब्यूमिन जो बॉडी में ईडिमा होता है उसे क्लियर करने के लिए और एल्ब्यूमिन
unconjugated bilirubin transport. ठीक है आगे बोलो. Name one drug which is transported by albumin. I am asking a drug. बहुत कॉमन होती है, मुझे भी जाकर खानी है. एनाल्जेसिक होता है बेटा. Name one hormone which is transported. Although there are a number of hormones, but you can name any one. ठीक है. अच्छा, tell me the principle for uric acid estimation. बात नहीं बेटा, बात नहीं. देखो मैम भी है, बात नहीं. by UVS method. At first, the uric acid oxidized by H2O and forms एलेंटोइन, हाँ. plus H2O2, हाँ. What is the full form of DCPS? Dichloro-phenol sulfur. Dichloro. Sulfonate. Then it forms quinone. क्या अधूरा छोड़ा इसने बेटा, बोल. H2O plus quinone. इसका प्रिंसिपल पूरा नहीं है. What has he left? पूरा बता दो. सर जब H2O और O2 की प्रेजेंस में यूरिक एसिड जो सीरम में वो रिएक्ट करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ यूरिक एसिड, तो उससे आपका इलेक्ट्रॉन बनता है और CO2 निकल जाता है. एंड देन फिर H2O के इन द प्रेजेंस ऑफ 4 अमीनो क्रोमोसोम और N4 डाइक्लोरोफेनॉल सल्फोनेट, वो POD की प्रेजेंस में आपका क्विनोलिन बनता है जो पिंकिश टू रेड कलर का और वाटर निकल जाता है. इतना भी सिंप्लीफाइड मत बोलना बेटा, थोड़ा सा इसको वर्ड्स में अच्छे से बना के बोलना. ठीक है, मुझे पता है, आपको पता है, बट डू नॉट बी दिस सिंपल. एक चीज और बताओ यार. In what clinical conditions beta you will find lower albumin levels? हाँ, तुम्हारा एल्ब्यूमिन कितना आया था? हाँ, तो नॉर्मल से कम है ना. उसका क्या रीजन लगता है आपको? और होता है, बट थोड़ा और अच्छा रीजन बताओ. गलत नहीं है, लेकिन उसे बाद में बोलना. एक नेफ्रोपैथी इज अ वेरी गुड रीजन. और बोलो. हाँ, यस. Why liver cirrhosis? Because albumin is formed in liver. ठीक है. और बर्न्स. अब बोल दे बेटा क्वेश्चन. अब चल रहा है. Why it is low in kwashiorkor? Can you explain? So white increases in kwashiorkor. Why it is low? For providing nutrition, albumin has a very distinct role in providing nutrition during starvation also. पता है बात? पता है बात? देखो, you cannot break down fibrinogen or globulin, but you can certainly break down albumin.
ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो पर्सन हु आर लॉन्ग ऑन लॉन्ग स्टारवेशन ना बेटा, देयर एल्बुमिन लेवल आल्सो फॉल्स। ओके, एनी क्वेरीज बेटा किसी को? बेटा पर्सन हु आर ऑन लॉन्ग स्टारवेशन ना बेटा, 3 भी नहीं, मतलब 7-8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, their albumin level falls because that protein or that amino acid in albumin, it is utilized for gluconeogenesis। पता है बात? अच्छा, किसी का कोई क्वेरी? जैसे AY की रेशियो जो सीरम है वो फॉल्स नेगेटिव, मतलब वो ना हो इसलिए, लेकिन जब टोटल प्रोटीन कम होगा तब एल्बुमिन कम होगा, ग्लोबुलिन भी कम होगा, तो उस टाइम तो AY की रेशियो मतलब ठीक रहेगा। फिर कैसे पता चलेगा कि एल्बुमिन या फिर कम है या ग्लोबुलिन ऐसा कम है, कैसे? अच्छा, मुझे एक बात बता बेटा, what is the normal range of total protein? बोल, ग्राम पर डी। ठीक, अब मान ले तेरा टोटल प्रोटीन आ रहा है लेटस से 3, ठीक, लिटरली आधा है, एंड यू आर गेटिंग एल्बुमिन कितना? 2 ग्राम पर डी। AS/G ratio still maintained 1.5, ठीक, but you know that albumin is also less, globulin total protein is also less, and globulin is also less। समझ आई बात? Then you go for differential diagnosis। इसका वजह क्या है? एल्बुमिन का लेवल घट रहा है तो आप पेशेंट हिस्ट्री देखोगे ना कि इज इट अ पेशेंट ऑफ नेफ्रोपैथी या सिरोसिस है, क्या है, ठीक है। जब तुझे आँख से दिख रहा है बेटा कि एक चीज़ कम हो रहा है, AS/G रेशियो का क्रिटिकल यूजेज तब आता है जब तेरी एक चीज़ नॉर्मल होती है लेकिन दूसरी घट जाती है। बट इफ योर टोटल प्रोटीन इज फॉलिंग, इट क्लियरली सिग्निफाइज दैट एल्ब्यूमिन अलोंग विद ग्लोबुलिन इज फॉलिंग। ठीक है, ठीक है, समझ आया? अच्छा, AS/G रेशियो बेटा सब निकालना और एल्ब्यूमिन वाले प्रैक्टिकल में लिख देना। ओके, जो भी प्रोटीन का वैल्यू है बेटा, टोटल प्रोटीन का, लास्ट प्रैक्टिकल से उठाना।